Hello, good evening, everyone. Welcome to the evening session at the Webability Foundation. My name is Tarashi Agarwal. Today, we are gathered to have a discussion on how human eye works, what the structure is, how it functions, what are the different disorders, medical conditions that may lead to low vision or blindness, cases of late blindness, and how we can have a great platform to interact with people like us and with good doctors who have good knowledge, good study on this, and so that we can could get better medical guidance about how we can lead more fulfilling and happy life. And to have a discussion on this, today we have Dr. Hitesh with us. He is an Ayurvedic specialist and currently he is working as an assistant professor. So I would like to welcome him. Hitesh sir, can you hear me? Yes, and thank you for your pleasant welcome. My pleasure, sir. My pleasure. So, sir, the platform is yours. We can get it started. Yeah, thank you. And once again, I thank this Divyability Foundation for this noble work, where they are trying to unite multiple, sufferers, including me, to exchange their own experiences. I'm also a retinitis pigmentosa patient. I'm natively from Karnataka, from the district of Mysuru. I was born to a consanguineous couple. I will be explaining what consanguineous is in my later session. So this is considered as a reason, maybe it's still a question mark, that I am suffering with this retinitis pigmentosa. And by now, I think all of Sorry, you, ನಾವ್ಯಾರು ಹೊಸಬ್ರಾ uh, I think there are some disturbances. ಹೇಳ್ಬೇಕಪ್ಪ. Tarashiji, I'm clear. Am I clear? Am I audible clearly? Yeah, you are audible clearly. Shweta, can we have everyone on mute, please? Yes, yes. Sure. Yes. Thank you. So that's what I was telling. I did my schooling from Jawahar Navodaya Vidyalaya from Mysore district of Karnataka. Later, I joined NIT Karnataka for my engineering course. That was the area where I could find difficulty in seeing the things. That was at the age of 18 or 19. Around that age, I was finding difficulty in looking at the blackboard. I was struggling to walk during the nights. So with all these difficulties, I of course went to an ophthalmologist, wherein I was diagnosed as retinitis pigmentosa, rod cone dystrophy to be specific. From then, I started searching for these kind of treatments, and I got to know that in Ayurveda there are some treatments. And somebody have also advised me that it would be difficult to continue in engineering with this, disease called retinitis pigmentosa. That was the reason why I have to switch into some other course from NIT. So when I got to know there is some medicine in Ayurveda, so I felt like why don't I try this course itself, wherein I can have simultaneous therapies as well as go my course or studies hand in hand. So that's how I landed in Government Ayurveda Medical College, Mysuru, and studied my 4.5 year of undergraduation course in Bachelor of Ayurveda Medicine and Surgery. And from then, I felt like to continue my career, I must also be pursuing MD, because all of you know, just with the UG in medicine, it's hard to survive in the society. So in the career field, so I chose a preventive and social medicine as my subject specialization. That's called community medicine nowadays. So it deals about the disease which are communicable from person to person, and did my MD from 2019 to 2022. And since then I have been working as an assistant professor in a private medical college of Karnataka. So before going in deep about how I am I today, and what all are my experience in treating the patients as well as dealing my own disease of retinitis pigmentosa. So let us have a deep dive into studying the structure of human eye. So human eye is one of the most fascinating organ in whole of the human body, which is considered only important next to the human brain. I mean to say, अगर इंसान के बॉडी के अंदर मस्तिष्क के बाद अगर कोई
सबसे क्रूशियल और इम्पोर्टेंट और फैसिनेटिंग ऑर्गन है, that is human eye, because it's so meticulous, it is so complex to be explained. So let us try to put it in simpler words. So I will try all my abilities, because I have traveled a journey of being a fully sighted person, then gradually turning into low vision, gradually turning into having the central vision or tubular vision, and currently totally blind. So I have passed across all the stages of visual disability, low vision, then tubular vision, central vision, totally blind, now using NVDA, Braille, everything. So I am trying to put it so that every one of us can understand this structure, function, and the treatment aspects which are related to human eye. So when it comes to human eye, there are two kind of components as it is divided by ophthalmologist. शायद आपने बहुत बार ये बोलते हुए सुने होंगे कि anterior aspect of eye and posterior aspect of eye. जो ह्यूमन की शक्ल में आंखें होते हैं, जो बाहर लोगों को जितना भी आंखें दिखेगा, ऑल दैट कंपोनेंट आर कॉल्ड एज एंटीरियर एस्पेक्ट ऑफ आइज. एंटीरियर का मतलब होता है आगे वाला चीज. और ऑब्वियसली अब आप समझ गए ही होंगे कि पोस्टीरियर एस्पेक्ट का मतलब होता है पीछे वाला चीज, जो स्कल के अंदर होता है. ह्यूमन आई इज इन स्पेरिकल, इट्स ए क्वाजी स्पेरिकल शेप, नॉट एग्जैक्टली स्फेयर भी नहीं है जैसे क्रिकेट बॉल या हम मार्बल्स खेलते थे छोटे बचपन में. तो उससे मिलता जुलता शेप में ह्यूमन आई रहता है. जो आगे वाला पोर्शन है दैट इज कॉल्ड एज एंटीरियर सेगमेंट. एंड इन ऑप्थाल्मोलॉजी द होल ऑफ डॉक्टर्स हैव बीन डिवाइडेड into anterior ophthalmologist as well as posterior ophthalmologists. So जिस हद तक हम सबकी कॉमन जो एलिमेंट है रेटिना है वो पोस्टीरियर सेगमेंट में ही आता है. भले ही एंटीरियर सेगमेंट इतना सिग्निफिकेंट नहीं है खास तरीके से हम लोगों के लिए. डिस्पाइट दैट आई विल बी पुटिंग सम लाइट ऑन दिस एंटीरियर सेगमेंट. एंटीरियर सेगमेंट कंटेन्स कॉर्निया, स्क्लीरा, कंजंक्टिवा, आईलिड्स, प्यूपिल एंड आइरिस. तो ये सारे टेक्निकल चीजें हैं, मेडिकल टर्मिनोलॉजीज है. इनको धीरे धीरे मैं थोड़ा थोड़ा एक एक करके आपको एक्सप्लेन कर देता हूं. जो एंटीरियर पोर्शन है सबसे आगे वाला, जो आप हाथ से भी छूकर दे सकते हैं, जस्ट आफ्टर अवर आईलिड्स. आईलिड्स को क्या बोलते हैं तरुषि जी? आईलिड्स आर द मस्कुलर थिंग्स दैट वी कैन ओपन एंड क्लोज. जो आइस को प्रोटेक्ट करता है उसी को आईलिड्स बोलते हैं. आई थिंक एवरीबडी माइट बी नोइंग अबाउट आईलिड्स. So I need help of Tarushi ji in translating into Hindi. Most of the things which I will not be knowing पलके in between. पलके पलके Palke Palke. hote hain. Yes, पलके that's it. That's it. Uh, That's it. So Sorry to interrupt, Hitesh. I was just curious to know, like, how many people can understand English and how many are yeah, comfortable in Hindi. that's better. That's better to know it. Yeah. Yes. Am I Shweta, can we? understandable? क्या मेरी भाषा सबको समझ में आ रहा है? They can put in the Yes, message or can unmute Yes, them. sir. Yeah, that's fine. That's fine yes then. yes yes We can- both Hindi and English both. I am comfortable both in Hindi and English. नहीं, yeah, then good. So what I am trying to use Hindi as well in between. So if this is good, then I need not be wanting any help from anyone. But if I stuck in any areas, Tarushi, please help me. No worries, I'm there. No worries. Yeah, fine, fine. So palke, I mean, as I said, eyelids are the first part of our eyes. Eyelids से भी बहुत बीमारियां होता है. The most common one is conjunctivitis, you all may be knowing it, and blepharitis. कभी कभी वो इन्फ्लेम हो जाते हैं. हालांकि वो विजन पे कोई इम्पैक्ट नहीं करते हैं. कोई इंसेक्ट की इन्फेक्शन से, कोई धूल आंखों के अंदर छिड़कने से आईलिड्स की बीमारियां हो सकता है. इफ दे आर अनट्रीटेड दिस इन्फेक्शन कैन स्प्रेड इनटू आवर इनर आइज. तो if it is treated in the earlier days, all the eyelid infections which are called as blepharitis are not of any significance, in our eye conditions. The next most important one is कॉर्निया. कॉर्निया बहुत बार टेम्परेरी ब्लाइंडनेस कर सकता है. द नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज कॉर्निया. आपने बहुत बार सुने होंगे, इट इज अ ट्रांसपेरेंट एवास्कुलर फ्रंट पोर्शन ऑफ द आई. आप जब भी आंखों से छू कर देखते हो तो हर बार आप कॉर्निया को ही छूते रहते हो इन बिटवीन द आईलिड्स. सो दैट इज द पोर्शन ऑफ कॉर्निया. वो ट्रांसपेरेंट है, हालांकि धीरे धीरे वो ओपेक बन जाता है. ओपेक का मतलब है नॉन ट्रांसपेरेंट और ट्रांसलूसेंट. इट इज ए जीरियाट्रिक चेंज. दैट मीन्स जैसे ही हमारा
तो कैजुअली वो सबके अंदर कॉर्निया ट्रांसपेरेंट के जगह से ट्रांसलूसेंट बन जाता है। तब हमको सुपरफिशियल एक लेयर, जैसे हम ऑनियन को पील आउट करते हैं ना, ऑनियन को क्या बोलते हैं हिंदी में, आई डोंट नो। ऑन कांदा, या इफ आई एम नॉट रॉन्ग इट्स कांदा। कांदा प्याज को, प्याज प्याज, ओके सॉरी, प्याज। प्याज को जैसे हम पील आउट करते हैं, सिमिलरली इन दैट मैनर वी कैन पील आउट द external most layer of the cornea to prevent blindness. So the first type of preventable blindness is corneal opacity. इसका इलाज भी है, हम लैसिक्स की जरिए या लेजर्स के जरिए जो सुपरफिशियल डेड लेयर ऑफ कॉर्निया है उसको निकाल सकते हैं। तब जो जो भी इंसान कॉर्नियल ओपेसिटी की वजह से ब्लाइंड बना है उसको पूरे आंखें आ सकते हैं। So this is about cornea, and cornea cannot undergo any infection because it is avascular. एक चीज याद रख सकते हो आप, एवास्कुलर का मतलब है कॉर्निया को कोई खून की ब्लड सप्लाई नहीं होता है। सो मेनी टाइम्स वेन एवर वी टेल दैट आंखें दूसरों को दिया जा रहा है, देर इज ट्रांसमिशन और ट्रांसप्लांटेशन ऑफ आई, ह्यूमन आई, तब आपकी जानकारी के लिए मैं बोलूंगा कि ओनली द आउटर मोस्ट लेयर, द कॉर्निया, इज ओनली बी ट्रांसप्लांटेड। ऐसा नहीं कि पूरे पूरे आई स्पेरिकल आई बॉल डेड बॉडी से निकालकर लिविंग इंडिविजुअल में ट्रांसफर किया जाता है। दैट्स अ रॉन्ग कंसेप्शन अमंग द पीपल। मूवी में भी ऐसा ही बता देते कि आंखें डाल दिए गए करके। वेन एवर वी people, ophthalmologists say that the eyes are being transplanted, then only one layer of the eye, that is the outermost layer, that's called cornea, is being transplanted. So this is about cornea. Then as we go inside the cornea, कॉर्निया को अगर कट करके अंदर गए तो हमको एक फ्लूइड मिलता है। दैट फ्लूइड इज कॉल्ड एज एक्वेस ह्यूमर। दैट फ्लूइड इज प्रेजेंट, ऑफ कोर्स इट इज सिंथेसाइज्ड विद इन द आइज, वो बाहर से नहीं आता है, आंखों के अंदर ही उसका प्रोडक्शन होता है और कुछ दिन बाद वो आंखों से बाहर भी निकलता है। The main functions of this fluid is to maintain that shape of this spherical, that compact shape of eyeball, as well as providing nutrients to the inner eye organisms or inner eye components. तो जैसे रेटिना भी है हमारा, जैसे लेंस है, you might have often heard about optic lens which are present inside ciliary muscles. लेंस को एडजस्ट करने के लिए एक स्पेशलाइज्ड मसल्स है, जैसे कि हमारा बाइसेप्स, जो आप सभी ने जानते हैं कि जो हाथ में मसल्स होता है, हड्डियों में मसल्स होता है, ऐसा ही ऑप्टिक लेंस को एडजस्ट करने के लिए एक मसल्स हमारे आंखों के अंदर ही है। दैट कैन नॉट बी टच्ड फ्रॉम द आउट, ओनली जब हम ऑपरेट करके अंदर देखेंगे तभी वो मसल दिखेंगे। दैट मसल्स आर कॉल्ड एज ciliary muscles, and the main function of ciliary muscles is to adjust the refractive power of a human eye. Abhi, before explaining what is refractive ability, so I was telling about this aqueous humor जो नरिश करने के लिए, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने के लिए और ह्यूमन आई की कॉम्पैक्टेबिलिटी को मेंटेन करने के लिए प्रेजेंट है। वो कभी कभी ज्यादा दबाव भी डाल सकता है। एज आई टोल्ड, फ्रॉम इनसाइड इट pushes the outer wall of the human eye to keep that spherical shape, वो राउंड शेप बने रहने के लिए वो कभी कभी अंदर से प्रेशर डालता है। एंड व्हेन दिस प्रेशर exceeds, we suffer with another kind of disease which is very common, called as glaucoma. आप सभी ने सुने ही होंगे, ग्लोकोमा इज a disease where the inner fluid inside the eye is exerting too much of pressure on the outer wall of the eyeball, जिससे कि आंखें फट सकती है, आंखों के अंदर जो ऑप्टिक नर्व्स है या रेटिना है उसका डैमेज हो सकता है। एंड कमिंग टू दिस ग्लोकोमा, दिस इज द कॉमनेस्ट कॉज ऑफ इरिवर्सिबल ब्लाइंडनेस। जैसे कि अभी थोड़ी देर पहले मैंने बोला था, कॉर्नियल ओपेसिटी, दिस इज ए रिवर्सिबल फॉर्म ऑफ ब्लाइंडनेस। कॉर्नियल ओपेसिटी से जो भी ब्लाइंड होता है उसको कॉर्निया रिप्लेस करके हम उसको फिर से रोशनी दे सकते हैं, ही कैन गेट हिज आईज बैक। This is what commonly done whenever we call eye transplantation. लेकिन the second condition is glaucoma, where due to excessive intraocular pressure, आप लोगों ने हर बार इसको सुने होंगे, दिस शब्द इंट्राओक्युलर प्रेशर, आईओपी। आईओपी का नॉर्मल वैल्यू है 10 to 21 mmHg। जैसे हम खून की बीपी मापते हैं ना, ब्लड प्रेशर 120/80 mmHg, ऐसे ही आंखों की अंदर की जो प्रेशर है, द प्रेशर विच इज नॉर्मली एक्सर्टेड बाय दिस एक्वेस ह्यूमर, दैट लिक्विड, शुड बी बिटवीन 10 to 21 mmHg। लेकिन कभी कभी कुछ जेनेटिक वजह से या फिर एक्सेस ऑफ प्रोडक्शन और लैक ऑफ ड्रेनेज
ज्यादा उत्पत्ति होना और बाहर निकलने की मुश्किल होने से अंदर जब वो फ्लूइड जम जाता है तो बहुत प्रेशर एक्सर्ट करता है और रेटिना और ऑप्टिक नर्व की उस प्रेशर के जरिए डिस्ट्रॉय होने की चांसेस बहुत रहता है. दिस इज द सेकेंड इंपॉर्टेंट कंडीशन दैट आई एम telling, I want to focus on this session, that is glaucoma. Now coming to the third most important organelle or part of the human eye, that is human lens. तो बहुत लोग जो चश्मा पहनते हैं ना, उनकी बीमारियां अक्सर ह्यूमन लेंस की वजह से होता है. ह्यूमन लेंस इज ए बाई कॉन्केव, आई मीन सॉरी, बाई कॉन्वेक्स लेंस. बाई कॉन्वेक्स का मतलब है दोनों तरह से बाहर की तरफ उलझा हुआ होना. दैट इज कॉल्ड एज convex lens. So the main function of this human lens is to collect human to collect the light rays. जो बाहर जो भी आपकी आंखों के सामने चीजें होते हैं, वो अगर आपको दिखने के लिए लाइट की होना जरूरी है. तो if even a sighted person, if he is in totally dark room, he cannot able to see anything there. He will literally be a blind. So the main see anything is light. लाइट होना बहुत जरूरी है. तो इस लाइट को रिफ्रैक्ट करके जो भी हमारे आंखों के सामने चीजें हैं, वो लाइट रेस विल ब्रिंग दैट इमेज ऑन दिस ऑप्टिक लेंस, और ऑप्टिक लेंस उसको कैप्चर करता है अपना रेटिना के ऊपर. एंड दिस रेटिना विल सेंड दिस इमेज सिग्नल्स थ्रू ऑप्टिक नर्व्स इनटू आवर ह्यूमन ब्रेन. तो ये टोटल प्रोसेस है जिससे कि हमें पता चलता है कि हमारी आंखों के सामने क्या है. ये बहुत फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स, 0.01 सेकेंड में खत्म हो जाता है कि विद इन सेकेंड्स वी विल बी रिसीविंग द लाइट सिग्नल्स दैट आर पासिंग थ्रू कॉर्निया, थ्रू एक्वेस ह्यूमर, देन फॉलिंग ऑन ऑप्टिक लेंस. ऑप्टिक लेंस के बाद वो सारे लाइट रेस इकट्ठा होकर रेटिना पे गिरता है. रेटिना विल सेंड दिस सिग्नल्स टू द ब्रेन. आंखों से ब्रेन तक की दूरी लगभग 8 से 10 सेंटीमीटर है. तो वो 10 सेंटीमीटर तक हमारा ऑप्टिक नर्व्स, जैसे वायर केबल होता है ना, जैसे आपने स्विच दबा दिया लाइट चालू हो गया, तो ऐसा वायरिंग कनेक्शन जैसे आप मान सकते हो ऑप्टिक नर्व छाया हुआ है अंदर. तो this optic network will carry the impulses that are falling on retina and sending it into the brain. Ultimately जो भी आपकी आंखों की सामने है उसका महसूस करने वाला ब्रेन ही होता है. And that is the reason why multiple nervous disease which are related to retina, macula and optic nerve are hard to be treated. That we will be talking in detail in the tomorrow session. So come back, I was talking about ऑप्टिक लेंस. ऑप्टिक लेंस का काम होता है जो आंखों के सामने से लाइट रेस आएगा उसको रिफ्रैक्ट करके रेटिना के ऊपर फोकस करेगा. और ऑप्टिक लेंस अगर खराब है तो आपको मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया और प्रेसब्रायोपिया, ये 3 बीमारियां हो सकते हैं. आई विल एक्सप्लेन ऑल द 3 इन डिटेल, क्योंकि हम लोगों को बचपन में most of the people who are suffering with retinitis pigmentosa who have definitely heard this word called myopia. myopia ये होता है कि रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा में कभी कभी जो लेंसेस होते हैं, ऑप्टिक लेंस, एक बाइकॉन्केव लेंस दोनों आंखों के अंदर है, वो लेंस कभी कभी ठीक से फोकल लेंथ एडजस्ट नहीं कर पाता है. तो ये जेनेटिक रीजन से भी हो सकते हैं, या फिर ड्यू टू द लैक ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ मसल्स और ड्यू टू डिफेक्ट इन द ब्रेन. कभी कभी ब्रेन ठीक से सिग्नल नहीं दे पाता है लेंस को कि कितना कॉन्ट्रैक्ट होना है. ये डायनामिक पावर, मतलब डायनामिक पावर बोलूं तो आंखों की जो पावर बोलते हैं ना, मतलब जब भी आप स्पेक्स पहनते हो तो शायद आपने सुने होंगे कि आपका स्पेक्स की पावर कितना है. तो लोग बोलते हैं ना -2 है, -4 है, -10 है, -11 है. तो ये पावर लेंस के हिसाब से मापा जाता है. तो नॉर्मल साइटेड लोगों में ऑप्टिक लेंस अपने आप खुद की पावर को एडजस्ट कर लेते हैं जितनी दूर पे वो ऑब्जेक्ट है उसके हिसाब से. लेकिन इनिशियल स्टेजेस ऑफ रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा में और मायोपिक केसेस में ये लेंस को हो नहीं पाता है. दैट इज वेयर वी विल हैव सम एक्स्ट्रा ग्लासेस टू करेक्ट दिस रिफ्रैक्टिव एरर. इसको रिफ्रैक्टिव एरर बोलते हैं और आंखों में स्पेक्स लगाकर उसको ठीक किया जा सकता है. एनीवे, इट इज द कॉमनेस्ट कॉज फॉर लो विजन. जब भी हम देखते हैं
मतलब विद इन दिस विजुअली चैलेंज्ड कम्युनिटी देर आर मल्टीपल पीपल हु आर फॉलोइंग इनटू द कैटेगरी ऑफ लो विजन, जिनको सिर्फ 40% की विजुअल डिसेबिलिटी है, जो कभी कभी गाड़ी चला सकते हैं, कभी कभी खुद से पढ़ सकते हैं, कभी कभी पास जाके छोटे मोटे चीजों को पहचान भी सकते हैं. सो ऑल दीज काइंड ऑफ पर्सन्स कैन बी पुट अंडर myopia. सो myopia विल नॉट अफेक्ट रेटिना एट ऑल. हालांकि ऐसा देखा जाए तो उनका स्टेबल विजन रहता है. समटाइम्स यू माइट बी वंडरिंग, आप कभी कभी हैरान होंगे ना, या कि मेरा तो विजन घट रहा है, लेकिन ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनको बचपन से आखिर तक, बूढ़े होते तक 40% ही बीमारी है. वो लोग गाड़ी चला रहे हैं, वो लोग कार चला रहे हैं, सब कुछ जो होता है ना, दीज पीपल विल फॉल इनटू दिस पर्टिकुलर डिसीज कॉल्ड एज हाई मायोपिया. वो लेंस की खराबी से होता है, रेटिना की खराबी से नहीं होता है. So far I will just recap. We will have a fast recap. We studied about cornea. कॉर्निया की बीमारी से कॉर्नियल ओपेसिटी होता है, तब भी आदमी ब्लाइंड होता है, लेकिन उसको आंखें देने से वो ब्लाइंडनेस ठीक हो जाता है. सो इन मल्टीपल मूवीज इट इज शोन, राइट. कभी कभी कोई अचानक ब्लाइंड बन गया, लेकिन उनको वापस आंखें मिले और वो सब कुछ ठीक से देख सकते हैं. वन एग्जाम्पल आई कैन कोट इज फना मूवी, वेयर काजल अग्रवाल गेट्स हर साइट बैक. That is due to corneal opacity, corneal blindness. Then next, secondly, we studied about aqueous humor. Aqueous humor एक प्रेशर मेंटेन करता है आंखों के अंदर. जब वो प्रेशर बढ़ जाता है, देन द बीमारी दैट वी स्टडीड अबाउट इज ग्लोकोमा. ग्लोकोमा में भी बहुत सारे सब टाइप्स है, उसको हम बाद में डीपली स्टडी कर सकते हैं. और दिस ग्लोकोमा इफ कॉजेस ब्लाइंडनेस, इट इज हार्ड टू बी ट्रीटेड. वो आंखों की अंदर की जो प्रेशर है, उसको भले ही लेजर और लासिक के जरिए हम ठीक कर सकते हैं, लेकिन जितना रोशनी जा चुका है, जितना विजुअल एबिलिटी जा चुका है ग्लोकोमा में, उसको वापस करना असंभव है. एज ऑफ नाउ द मेडिकल ऑप्थेल्मोलॉजी सेज ब्रिंगिंग बैक द destroyed optic nerves is not possible. So this is about glaucoma. It's the second disease that we studied today. And the third component is lens. एक्वेस ह्यूमर के बाद लेंस आएगा. इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज ऑप्टिक लेंस. सो ऑप्टिक लेंस का मेन काम है रिफ्रैक्टिव एरर, जो आंखों की पावर है, लेंस की जो पावर है, उसको स्टेबलाइज करना. इफ देयर आर फिजिक्स स्टूडेंट्स, दे कैन अंडरस्टैंड इट वेरी वेल. व्हाट इज रिफ्रैक्शन, व्हाट इज रिफ्लेक्शन, व्हाट इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड ऑल. सो खुद का एक पावर होता है लेंस का, वो डायनेमिक पावर होता है. मतलब डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन, आवर ऑप्टिक लेंस हैव दैट एबिलिटी टू चेंज इट्स पावर. जब वो पावर चेंज कर नहीं पाता है, देन वी हैव टू गिव सम एक्सटर्नल सपोर्ट इन द फॉर्म ऑफ स्पेक्टेकल्स. कभी कभी लेंस भी हम ऑपरेट करके आर्टिफिशियल लेंस भी हम डाल सकते हैं, या लैसिक्स के जरिए, लेजर ट्रीटमेंट के जरिए रिफ्रैक्टिव एरर को ठीक भी कर सकते हैं, और स्पेक्स भी पहना के हम उसको ठीक कर सकते हैं. दिस डिसीज इज कॉल्ड एज मायोपिया. दिस वाज व्हाट वी हैव स्टडीड सो फार. जो अभी तक जितने भी हमने स्टडी किया, इट इज कॉल्ड एज एंटीरियर पोर्शन ऑफ डिसीज और एंटीरियर पोर्शन ऑफ ह्यूमन आई. अभी तक जितने भी हमने देखा वो एंटीरियर सेगमेंट है. ठीक ऑप्टिक लेंस के पीछे, मतलब ऑप्टिक लेंस के बाद पीछे जो भी है, वो स्कल के अंदर आते हैं. ह्यूमन स्कल का मतलब द बोन which is protecting our ears, eyes, brain, everything, that's called as skull. I hopefully know everybody knowing what is skull. तो स्कल के अंदर जो पोर्शन है आईबॉल का, वहां पे हमारा मेनली तीन चीजें होता है. वन इज विट्रियोस ह्यूमर, दैट इज ऑल्सो ए फ्लूइड विच नरिशेस रेटिना. Second major component is pigmented epithelial layer, that is commonly called as retina itself. इसको मैं डिटेलली बाद में बोलूंगा. और थर्ड इंपॉर्टेंट चीज है ऑप्टिक नर्व्स. सो ये तीन चीज पोस्टीरियर सेगमेंट में आते हैं. एंटीरियर सेगमेंट में कॉर्निया, एक्वेस ह्यूमर एंड ऑप्टिक लेंस आते हैं. सो लेट अस लुक इनटू द पोस्टीरियर पार्ट ऑफ आई इन लिटिल बिट. तो ये सबको, जितने भी लोग हम इधर है, तो थोड़ा कॉम्प्लेक्सिटी पोस्टीरियर सेगमेंट में ही है, और हम सब लोगों को जानने का जरूरत भी इसी पोस्टीरियर सेगमेंट के बारे में ही है. देर आर वेरी फ्यू ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट हु हैव स्टडीड पोस्टीरियर सेगमेंट. अक्सर आंखों की बीमारियां सब कुछ एंटीरियर सेगमेंट में ही रहते हैं, इसीलिए एंटीरियर आई सर्जन्स बहुत है, एंटीरियर ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट बहुत है, लेकिन पोस्टीरियर सेगमेंट वाले बहुत कम इसलिए है क्योंकि इसको स्टडी करना मुश्किल है. हम जो लोग जिंदा है उनको ऑपरेट करके स्कल के अंदर जो है उसको ऑपरेट करना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि वी कैन नॉट कट द स्कल. स्कल इज ए बोनी प्रोटेक्टिव गार्ड विच विल प्रिवेंट रीचिंग द पोस्टीरियर पार्ट ऑफ ह्यूमन आई.
तो वहां तक पहुंचना भी मुश्किल है, रेटिना को रीच करना ही बहुत मुश्किल है। ऑप्टिक नर्व्स को तो हम छू भी नहीं सकते। ऑल वी कैन रीच इज ओनली अप टू द विट्रियस ह्यूमर। ये जो ऑप्टिक लेंस जो एंटीरियर सेगमेंट की है वो दीवार जैसा है, वो एंटीरियर पोर्शन की जितनी भी चीजें हैं वो पोस्टीरियर पोर्शन में जाने से रोकता है। सो दिस इज वाई वी कैनॉट रीच इन टू द पोस्टीरियर पार्ट ऑफ human eye. So the first disease that I am going to explain from the posterior segment is macular dystrophy, or it is also called as Stargardt disease. Juvenile macular dystrophy is called as Stargardt disease. हालांकि macular dystrophy नॉर्मली सभी लोगों में होता है ड्यू टू एजिंग। जैसे ही लोग बूढ़े होते हैं, 60-70 के आसपास लोग जाते हैं, तब वो 70 या 60-70-80 साल जीते जीते अपने आप रेटिना डिजेनरेट होता है। इन रेटिना मैक्यूला इज ए पार्ट, द सेंट्रल पार्ट ऑफ रेटिना इज कॉल्ड एज मैक्यूला। वो थोड़ा सा सिर्फ 2 से 3 mm की एक जगह है, फोविया और मैक्यूला। सो यही चीज है। यहाँ पर हर बार जब भी लाइट रिफ्लेक्ट होकर रेटिना के ऊपर गिरता है, this macula is the area where most often the light will fall, and this is the place from where the impulses will generated the impulses are generated and sent to the brain. So excessively use होने की वजह से old age में एज रिलेटेड मैकुलर डिस्ट्रोफी, AMD बोलते हैं उसको, जो बूढ़े लोग में होता है वो है। लेकिन ड्यू टू सम जेनेटिक म्यूटेशंस, so I will be explaining what is genetic mutation in couple of minutes. Due to genetic mutations, most of the time बचपन में ही मैकुलर डिस्ट्रोफी या मैकुलर डिजेनरेशन शुरू हो जाता है। दैट इज कॉल्ड एज स्टारगर्ट डिसीज। सो यू माइट हैव ऑफन हर्ड अबाउट दिस। स्टारगर्ट डिसीज बहुत लोग होते हैं जिनको सेंट्रल विजन सबसे पहले चले जाते हैं। रेटिना की डिसीजेस में एक पैटर्न हमको देखने को मिलता है। कुछ लोगों को सेंट्रल विजन बहुत पहले जाते हैं, कुछ लोगों को पेरिफेरल विजन पहले जाता है, और कुछ लोगों को कलर विजन सबसे पहले जाता है, कुछ लोगों को नाइट ब्लाइंडनेस सबसे पहले होता है, और कुछ लोगों को डे ब्लाइंडनेस सबसे पहले होता है। सो दीज आर ऑल डिपेंड्स ऑन द स्ट्रक्चर ऑफ रेटिना विच इज being affected. So now I am taking macula as the first structure or the first portion from the retina. तो मैक्यूला की खराबी होने से सबसे पहला सिम्टम्स हमको जो देखने को मिलता है, दैट इज लॉस ऑफ सेंट्रल विजन। ऐसे आप बहुत लोगों से सुनेंगे कि मुझे सेंट्रल वाले लोग नहीं दिखते हैं। जो आंखों की ठीक सामने से लोग आ रहे हैं, या आंखों की ठीक सामने जो भी चीजें रखे हुए हैं वो नहीं दिखते। लेकिन आंखों को आप हिलाकर जब साइड पोर्शन को बीच में लाके देखते हैं या फिर आप किसी और देखते हो तो सामने की चीज आपको दिख जाता है। सो दिस इज वन ऑफ द मेन सिम्टम ऑफ मैक्यूलर डिस्ट्रोफी और स्टारगर्ट डिसीज। नेक्स्ट मेन कंपोनेंट, रॉड्स एंड कोन सेल्स। जैसे ही मैंने बोला, रेटिना एक सेमी सर्कुलर स्ट्रक्चर है, जो पीछे की तरफ कर्वेचर बनता है वो पूरे रेटिना से बनता है। दिस इज ए नर्वस टिश्यू। रेटिना के ठीक सेंटर में जैसे ही मैक्यूला है, ऐसे ही उसके आगे और पीछे की तरफ या ऊपर और नीचे की तरफ हमको देखने को मिलता है रॉड सेल्स एंड कोन सेल्स। आपने ये भी बहुत सुने होंगे कि रेटिना इज मेड अप ऑफ रोडोप्सिन, इट्स ए प्रोटीन, विटामिन ए से बनता है। तो इसमें 2 टाइप ऑफ सेल्स है। द पहला टाइप ऑफ सेल इज कॉल्ड एज रॉड सेल्स, which are the short form of rhodopsin, which helps us to have vision during night. रॉड सेल का सबसे इंपॉर्टेंट काम है, जहां पर भी डिम लाइट है वहां पर आंखों को एक्टिवेट करना, और रात के टाइम पे या कम लाइट होने की जगह पे आंखों को विजुअल परसेप्शन दिलाना काम होता है रॉड सेल्स का। ऐसे ही जो कॉन सेल्स है, कॉन सेल्स का काम होता है कलर परसेप्शन करना, और फाइन परसेप्शन बोलते हैं। मतलब जो भी आदमी आ रहे हैं वो उसकी कलर क्या है, उसके आंखें कैसे हैं, उसका नाक कैसे है, उसके बाल कैसे है, ये सारे जितने फाइन परसेप्शन ऑफ विजन है वो कोन्स का काम है। और कलर परसेप्शन, प्राइमरी कलर जो रेड ब्लू ग्रीन परसेप्शन का काम है, वो भी कोन सेल्स का काम है। तो नाउ एट दिस पॉइंट आई वुड लाइक टू इंट्रोड्यूस यू द मोस्ट पॉपुलर डिसीज, रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा। रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा में क्या होता है, यही रॉड सेल्स और कोन सेल्स की डिस्ट्रक्शन होता है, डिजेनरेशन होता है। तो in one, see, whenever I take the name retinitis pigmentosa, it is a group of millions of diseases. ये एक बीमारी नहीं है, it is the most common heterogeneous retinal disease.
रेटिना के हेटेरोजीनियस का मतलब होता है अलग अलग लोगों में अलग अलग टाइप में दिखना। जैसे होमोजेनिटी का मतलब है, अगर आपको बता दूं, कोविड 19 था, आप सभी ने बहुत सुने होंगे कोविड 19 के बारे में। कोविड 19 का क्लासिकल सिम्टम्स है एनोरेक्सिया, मतलब बुखार आना, नाक से श्वास लेने में मुश्किल होना, और स्मेल की पता नहीं चलना, टेस्ट की पता नहीं चलना। ये चार पांच चीजें थे जो सभी कोविड 19 के पेशेंट्स में कॉमन थे। सो ऐसी बीमारियां जो होते हैं जहां पर सिम्टम्स कॉमन रहते हैं और उसका कॉजेस भी कॉमन रहते हैं, द कॉज वाज कोरोना वायरस, तो ऐसी चीजों को होमोजेनियस डिसीज बोलते हैं। लेकिन कुछ बीमारियां ऐसी भी है जो नाम के लिए सिर्फ सेम रहते हैं, लेकिन हर आदमी के अंदर अलग अलग टाइप में मैनिफेस्ट होते हैं, अलग अलग सिम्टोमेटिकली प्रेजेंटेशन रहते हैं, इनके ट्रीटमेंट अप्रोच भी अलग अलग रहता है। ऐसी डिसीजेस को हेट्रोजेनियस डिसीज बोलते हैं। और आंखों में होने वाला मोस्ट पॉपुलर हेट्रोजेनियस डिसीज है रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा। यहाँ पे क्या होता है, ड्यू टू सम जेनेटिक म्यूटेशन और ड्यू टू सम जेनेटिक कॉजेस, रॉड्स और कोन सेल्स जो आंखों में रेटिना में रहते हैं उसका डिस्ट्रक्शन होना शुरू हो जाता है। जब भी रॉड्स एंड कोन सेल्स का डिस्ट्रक्शन होता है, तो पहले रॉड की डिस्ट्रक्शन होने से हमको शुरुआती दिनों में नाइट ब्लाइंडनेस रहता है, और धीरे धीरे जब कोन सेल्स भी डिस्ट्रक्ट होने लगेंगे तो हमारा फाइन विजन जो होता है, जैसे कि लोगों को पहचानना, किताबों में जो चीजें लिखी हुई है उसको पढ़ना, और दिन में भी जो हमको विजन मिलता है वो धीरे धीरे घटने लगता है। सो दिस इज अ प्रोग्रेसिव डिसीज रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा। हालांकि इसका प्रोग्रेशन की रफ्तार का कोई कॉमन पैटर्न नहीं है। पैटर्न का मतलब, व्हाट डू आई मीन इज, स्पीड ऑफ प्रोग्रेशन ऑल्सो हेटेरोजेनस। ऐसे भी लोग हैं जिसको 40 60 उम्र तक डिजेनरेट हुआ ही नहीं है, लेकिन ऐसे भी लोग हैं जिनको 14 साल में पता चला और 20 की होते होते एंटायरली रॉड्स एंड कोन्स का डिजेनरेशन हो गया। तो इसका भी कोई यूनिफॉर्म पैटर्न नहीं है। So that is one more crucial which we need to be knowing before understanding the treatment possibilities of retinitis pigmentosa. Then I will be coming into this optic now. ऑप्टिक नर्व की ऐसा बहुत सारे बीमारियां हैं जिनसे भी ब्लाइंड हो सकता है। वन ऑफ द मोस्ट कॉमन डिसीज ऑप्टिक नर्व एट्रोपी। आपने ये नाम भी बहुत सुने होंगे। जिनको भले ही रेटिना ठीक रहता है, रेटिना जो इम्पल्सेस ब्रेन भेजता है, वो ब्रेन की जो 8 सेंटीमीटर की जो दूरी है उसकी दूरी तय करने के लिए वो इम्पल्सेस एक्शन पोटेंशियल बन के या न्यूरोट्रांसमीटर की मदद से ये ऑप्टिक नर्व्स के जरिए ही कनेक्शन, मतलब ब्रेन तक पहुंचता है। जब ये ऑप्टिक नर्व्स डिजेनरेट होते हैं तब हम बोलते हैं इसको ऑप्टिक नर्व एट्रोपी। एट्रो मतलब होता है सेल की साइज श्रिंक होना। एंड व्हेन आई से द नेम सेल, सेल का मतलब जीव कोश होता है। बॉडी की, हमारे बॉडी के हर अंग सेल से ही बने रहते हैं। एंड व्हेन मल्टीपल सेल्स कंबाइन टू परफॉर्म ए सिमिलर फंक्शन, दैट इज कॉल्ड एज टिश्यू। सो रेटिना कैन बी कॉल्ड एज ए टिश्यू विच इज मेड अप ऑफ सिमिलर सेल्स। जहां पे सेल की बात करूं तो रॉड सेल्स एंड कोन सेल्स। तो सेल और टिश्यू के अंदर भी फर्क आपको थोड़ा हद तक जानना जरूरी होगा। रेटिना टिश्यू विच इज मेड अप ऑफ एपिथेलियल टिश्यू, इट इज पिगमेंटेड एपिथेलियल टिश्यू, जिसके अंदर जो सेल है उनका नाम है रॉड्स एंड। तो आरपी के पेशेंट्स के अंदर रॉड्स एंड कोन्स की डिस्ट्रक्शन धीरे धीरे होने लगता है। तो यही वजह है, हमको अलग अलग स्टेजेस होते हैं आरपी के अंदर। सबसे पहला हो सकता है मयोपिया, मतलब दूर की चीजें नहीं दिखना। धीरे धीरे नाइट ब्लाइंडनेस शुरू हो जाता है। उसके बाद विजन घटने लगता है। उसके बाद ट्यूबुलर विजन या सेंट्रल विजन सिर्फ बचता है। उसके बाद सिर्फ लाइट परसेप्शन बच जाता है। और बहुत रेयरली, हालांकि जितने ओल्डेस्ट पेशेंट्स को भी मैंने देखा है उन सभी के अंदर लाइट परसेप्शन बरकरार रहता है आखिरी दिनों तक भी। लेकिन वेरी रेयर है रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा के अंदर लोग लाइट परसेप्शन भी खो लेते हैं। दैट्स वेरी रेयर। सो दिस इज ऑल अबाउट macular degeneration, retinitis pigmentosa, and optic nerve atrophy, which are the common diseases of posterior, posterior segment of human eye. So I was planning for 40 minutes of a session. Now I think I could reach this 40 minutes mark. I think I can dedicate the next 20 minutes to take up questions and doubts from you all. And keep in mind, today my main motto is to make you understand the disease, treatment की
ट्रीटमेंट के बारे में जो भी चीजें हैं वो हम कल बात करेंगे, बिकॉज इट्स एंटायरली ए बिग टॉपिक. Before jumping into the treatments, I must also be need to make you aware of all the possible treatments, what are the success rates of every treatments. Then only we can take up the doubts regarding treatments. So for today, let us restrict ourselves to only these diseases. If I have left out any rare diseases जो आपके दिमाग में है, जिनके बारे में आप जानना चाहते हो, वो आप अभी पूछ सकते हो. या तारिशी, how about Uh, this? yes, sir. Before that, I just want to say the Yes. people who want to ask doubt, they can raise their hand. I will tell their names and they can unmute. It will be better, I guess. Yeah, we can. Yeah. I think there were multiple messages falling in the chat. In chat, If Dhananjay you actually can, shared the image, which I can't read. So you can unmute and ask your query, Dhananjay. Yes, ma'am. Yeah. Good evening, sir. yes, good evening. May I know your जी name? सर. यस सर. तो सर मेरा कुछ डाउट है कि जैसे ये सर मैंने एक फोटो भेजा है चैट में, थोड़ा आप इसको 1 मिनट और ये देख लीजिए 1 मिनट. Pardon, उसके I बाद couldn't hear you. क्या भेजा है आपने? Hitesh sir, I think he has sent क्या an क्या भेजा है image आपने? in the chat, so he just want you to read that. Okay. Yeah, let me try it. No, if you can brief it out. क्या है उसमें, क्या चीज है, या क्या धनंजय, आप आपका समझा रिपोर्ट सकते है, हैं क्या या इमेज में क्या है? दैट विल बी इजी फॉर एवरीवन. या सर ये रेटिनो ब्लास्टोमा क्या होता है? जैसे मेरा ही आँख का है, लेकिन मैं अभी अपने डॉक्टर या से मतलब बात नहीं किया क्योंकि पापा के साथ जाता हूँ. ओके. तो ये रेटिना ब्लास्टोमा आई कैंसर है यस लिखा हुआ है. यस यस. और इसमें ये रेटिना ठीक है, मैं समझ कॉर्नियल. गया. आई विल एक्सप्लेन यू अबाउट दिस रेटिनोब्लास्टोमा. सी दिस, आप तो हिंदी में बता दीजिए. किसी में कोमा रहता है ना, कोई भी डिसीज हो, हाँ OMA लिखा हो, that is हाँ. called that is called carcinoma. Okay, carcinoma is a medical term for cancer. जो आम तौर पे हम लोग कैंसर बोलते हैं, उसका अच्छा. मेडिकल नाम है कार्सिनोमा. जो भी तो सर ये डिसीज के अंदर ब्लास्टोमा, मेगालोमा, हाँ, में OMA लिखा है, वो कार्सिनोमा ही होता है. तो आपको ब्लास्टोमा ही है. इन दिस कंडीशन जो रेटिनास की सेल्स होता है वो खुद को डिस्ट्रक्ट करने लग जाते हैं. ड्यू टू, यस सर. you might be knowing there are multiple types of cancers. ये leukemia is blood cancer, esophageal cancer. हम्म. हाँ तो सर ये ज्यादातर जैसे मैं सुना जेनरिक होता है, लेकिन बट मेरे फैमिली में पूरा दिन तक किसी को नहीं हुआ, ये मेरे साथ ही हुआ है. जब मैं ढाई हाँ. 3 साल का था तब हो गई. यस, बचपन से ही नहीं हुआ, देखिए सीधी बात इसको. है. हाँ, आपको ये हुआ ही क्यों, ये इडियोपैथिक बोलते हैं. कैंसर के लिए आज तक कोई वजह वजह नहीं मिला है. सी वेन एवर यू आस्क व्हाई कैंसर अकर टू मी, मे बी ब्लड कैंसर, मे बी यूट्राइन कैंसर, मे बी ब्रेस्ट कैंसर, देर आर मल्टीपल काइंड ऑफ कैंसर. हालांकि वी कैनॉट ट्रेस द एग्जैक्ट कॉज. कभी कभी लंग कैंसर उनमें होता है जो स्मोक करते हैं, कभी कभी लिवर कैंसर उनमें होता है जो बहुत अल्कोहल कंज्यूम करते हैं. तो ऐसा ही आंखों के अंदर कैंसर होने की कोई डायरेक्ट रीजन नहीं है, ये भी जेनेटिक है. आपके आंखों के अंदर शायद विट्रियस ह्यूमर, जो मैंने बोला एक फ्लूइड रहता है, उसमें कुछ जेनेटिक मॉडिफिकेशन हुआ हो जो आपकी रेटिना को किल कर रहा हो, तो वही अच्छा. है. और शायद जहां तक मुझे पता है, इसको इलाज करना भी मुश्किल है. लाइक एवरी अदर हाँ थेरेपीज, हाँ सर, ये देयर जब कैन बी 2003 कीमो में मैंने बहुत सारे हॉस्पिटल प्रोफिलैक्सिस. में. यस. यस सर, हाँ जब मैं छोटा था तो सारे हॉस्पिटल ने मना कर दिया था, ऑल एम्स की इसका आई नहीं बचेगा, लेकिन वहाँ पीजीआई चंडीगढ़ में यस बोला यस कि यस एक यस आई यस. बहुत एक रेयर आई है. को हम निकाल देंगे, लेकिन एक आई को थोड़ा रोशनी बचा देंगे. ओके. एक आई मेरा आर्टिफिशियल आई है, Yes. वही है. पत्थर Uh, वाला. और जो ठीक है, ठीक है. व्हाइट आई है जिसमें यस, विजन दैट्स है. इट. इट्स ए वेरी रेयर कंडीशन. और इसमें ये भी यस बोला गया है कि मेरा लाइफ ट्रीटमेंट मतलब पूरा लाइफ ट्रीटमेंट चलेगा, हर 6 महीने 1 साल पे दिखाना होगा. रेटिना जांच होता है हर 6 महीने. यस, दैट्स इट, दैट्स इट. जितने सेल्स बचा है
उसको बचाने की कोशिश हम कीमो प्रोफिलैक्सिस बोलते हैं उसको, केमिकल की जरिए हम बचा सकते हैं उसको। लेकिन दैट्स सर इट, वहाँ यू पे यू कुछ शुड हैव टू बी मेडिसिन वाला नहीं कंटिन्यूइंग योर डालते हैं, ट्रीटमेंट। बस जांच करते हैं मशीन में रेटिना, एक दैट्स व्हाट। कंप्यूटर। देखो, जो ये जो रेटिना किल करते हैं ना, उसको मार्कर्स, बायोमार्कर्स बोलते हैं। जब अच्छा। जब वो लोग जांचते हैं, उनको अगर पता चलता है कि हम्म। कोई पर्टिकुलर पैटर्न ऑफ बायोमार्कर आपके आंखों में उपलब्ध है, देन ओनली दे कैन प्लान फॉर सम थेरेपी। अदरवाइज दे विल जस्ट से यू दैट ठीक है, आज तक कुछ गड़बड़ नहीं है, आप जा सकते हो, अगले बार आओ करके। दैट्स व्हाट हम्म। करंटली वी हैव, एक ड्रॉप दैट्स डालते हैं टेक्नोलॉजी व्हिच इज 30 मिनट पहले, एज बस ऑफ नाउ। उसके बाद सेव करते हैं। यस 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 अच्छा, तो यस। सर इससे मतलब मुझे किरा इस डिसीजन में क्या रोशनी देखो, आगे तक रहेगी या फिर बहुत हो whenever we want to know too much about personal things, then better you can call me. I can share my people जाएगी? lot many Hello. So actually your so network keep So your is I think personal there's breaking. an things Wait, wait, aside. wait, wait, wait. Yeah. Shweta, wait. Hitesh, please wait. Uh, just ask your questions. If you want to connect with Dr. Hitesh, you can drop a message in the group or you can reach out to the admin and they will connect, right? But now you just ask your queries. We don't have that much time and he has given his slot uh, for 1 hour. So please ensure that we cover everything in that given that time. ओके Yeah, ओके, तो people सर का like नंबर कहाँ से मिलेगा? यू कैन मैसेज, आप ग्रुप में मैसेज करना जिस एडमिन को, एडमिन विल कनेक्ट यू विद द डॉक्टर सर। ओके। ओके सर, थैंक यू। हाँ, नो वरीज। Hitesh Can sir, I move I to think other there is a person? network issue on your side. Yeah. Can you Is try it? to be your Yeah. voice was a bit breaking previously. Okay. Yeah. That's there actually. I stay in. I think it's better now. We are good to go. Yeah. Yeah. We No. can No. have No. I'm. short queries. Yeah, Yes. Sushma, you can, who's this? Sorry, Ashwani. Ashwini, Hello, अपना am I क्वेश्चन audible? पूछे। Yes. Am I audible? Yeah, you are. Yeah, thank you so much. So, good evening, sir. Sir, Yes. Good evening. actually, I am a late blind. जो मेरा ब्लाइंडनेस है वो एज ऑफ 15 में आया था, मीन्स व्हेन आई वाज 15 इयर्स ओल्ड। तो मेरा जो ब्लाइंडनेस है सर, वो ड्यू टू सम हेल्थ इशू, मतलब मेरा ब्रेन प्रेशर बढ़ गया था सर। एक्चुअली उस Okay. वक्त Okay. मुझे बहुत वोमिटिंग हो रहा था Okay. एंड देन ऐसा फैमिली में लगा, एक्चुअली ट्रीटमेंट भी हुआ, लेकिन फिर Okay. फैमिली में लगा कि मुझे शायद जॉइंटिस हो सकता है, तो मैंने वो थोड़ा उसका वनस्पति औषधि अभी ली, तो फिर वो Okay. इफेक्ट मेरी आईज पे किया। तो विद इन 8 days आई लॉस्ट माई आई साइट। तो Okay. अभी डॉक्टर से मतलब चेकअप वगैरह किया है, बहुत चेकअप किया है, अभी Mm-hmm. 14 years हो गए अभी। तो डॉक्टर बोलते हैं Mm-hmm. कि ऑप्टिव नर्व्स है वो पूरी तरह से ड्राई हो गई है। Damage. जल चुका है। हाँ Yeah. हाँ। Yeah. That's what. और इट्स Hmm. माय लेफ्ट आई एंड मेरे राइट आई में सर एक्चुअली मेरा जो पूरा आई बॉल है वो पूरी तरह से डैमेज है, मतलब अंदर से सारी चीजें ये हो गई है, Mm-hmm. क्योंकि मेरा राइट आई का कलर ही चेंज हो गया है। मेरी Yes. लेफ्ट आई ठीक है। Yes. I got your point. सो Yes. सर इन I will दैट, be explaining your condition now. हाँ Yes. 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 Go ahead. हाँ। Yeah. तो Complete सर your question. या इस केस में सर एक्चुअली अब ऑप्टिव नर्व्स का भी कुछ नहीं, और ये राइट आई है उसका भी, मतलब क्योंकि इट्स वेरी पेनफुल, समटाइम इट्स पेनिंग। तो Yes. फिर ऐसे में क्या कर सकते हैं सर कुछ एक्चुअली? या मैं अभी आपका डिजीज को एक्सप्लेन कर दूंगा, ट्रीटमेंट की हाँ, हम कल देखते हैं। ओके। First thing is, I told you that in posterior portion of eyes there is retina as well as optic nerves. And optic nerve के बारे में मैंने बोला था, जो 8 सेंटीमीटर की जो दूरी है रेटिना से ब्रेन तक पहुंचाना। ब्रेन में एक पॉइंट है, सेंटर है, विच इज कॉल्ड एज विजुअल कॉर्टेक्स। जो भी हम परसीव करते हैं, देखते हैं, उसका अल्टीमेट डिकोडिंग वही होता है विजुअल कॉर्टेक्स में। तो लेकिन कभी कभी क्या होता है, कुछ ब्रेन की बीमारी की वजह से
भी, कभी कभी डेंगू, कभी कभी ब्रेन फीवर बन जाते हैं। मोस्ट ऑफ द एंड स्टेज ऑफ फीवर इज ब्रेन फीवर। कभी कभी हम बीमारी या व्हाट डू वी कॉल बुखार बुखार को शुरुआती दिनों में रोक नहीं पाते हैं। देन इट रीचेस ब्रेन। जब वो ब्रेन पहुंच जाता है तो ब्रेन की जितनी भी सेंटर्स है, ब्रेन इज लाइक ए मदरबोर्ड ऑफ ए कंप्यूटर, जहाँ माउस से सीपीयू, मतलब फ्रॉम कीबोर्ड, फ्रॉम मॉनिटर, फ्रॉम प्रिंटर, एवरीथिंग कम्स एंड जॉइंस एट वन पॉइंट, जहां रैम से सारी जगह से जब मिलता है, वहां पर अगर थोड़ा सा भी डैमेज हो गया, इट कैन कॉज सीवियर डैमेजेस इन मल्टीपल पार्ट्स ऑफ आवर बॉडी। तो आपके कंडीशन में ऐसा हुआ है कि सम अनकंट्रोल्ड फीवर मे बी जॉन्डिस और मे बी डेंगू और एनीथिंग। यूजुअली इन डेंगू फीवर, डेंगू एंसेफेलाइटिस बोलते हैं उसको, हेमोरेजिक फीवर भी बोलते हैं। तो ब्रेन की तरफ से, नॉट फ्रॉम आइस, इट स्टार्टेड फ्रॉम द ब्रेन। ब्रेन स्टार्टेड टू डैमेज योर नर्व्स। अक्सर हर आंखों की बीमारी में आंखों से शुरू होकर ब्रेन तक पहुंचता है। आपके कंडीशन में वो उल्टा है, ब्रेन से शुरू होकर आंखों तक आया है। तो आपकी आंखें ठीक है, द डैमेज इज स्टार्टेड फ्रॉम ब्रेन. In some cases the eyeball will be very perfect, as you were telling. There is some visible damage even in your eyeball. Yeah, it started from the brain, and that excess of pressure have caused dystrophy or atrophy of your optic nerves. Optic nerve को ऊपर से वो जला दिया है. That's what happened in your eyes. Now when it comes to treatment, if you have pain, there are some analgesic drops. आपको आंखों में ड्रॉप्स डालने के लिए लोग ड्रॉप्स प्रिस्क्राइब करते हैं। और जो ऑप्टिक नर्व डेथ हो चुके हैं, उसको वापस रीजनरेट करना मुश्किल की काम है। लेकिन ऐसा भी लोग हैं जिनके अंदर लकीली विथ नो एक्सप्लेनेशन, समटाइम्स बाय देमसेल्फ, ऐसे बोलते हैं ना, खुदा की कुछ मैजिक चल गया कि ऑप्टिक नर्व अपने आप रीजनरेट भी हुए हैं। देर आर सम कंडीशंस, जब हमने पहली बार फंडोस्कोपी बोलते हैं, आप लोग शायद हर बार जब डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर अपने सिर के ऊपर कुछ लाइट वगैरह पहना के आपके आंखों में ड्रॉप डाल के उसको डाइलाइट करके, यानी 30 मिनट या 40 मिनट बिताते हैं ड्रॉप डाल के, बाद में आंखों में फोकस लाइट डाल के देखते हैं ना। दैट इज टू विजुअलाइज द पोस्टीरियर पोर्शन ऑफ योर आई, जहां पर ऑप्टिक नर्व्स दिखाई देते हैं। तो ऐसा बहुत बार हुआ है कि ऑप्टिक नर्व जो जल गया था, डेथ हुआ था, वो कभी कभी अपने आप बॉडी हैव द एबिलिटी टू हील देमसेल्फ। तो ऐसा हीलिंग भी हुआ है। लेकिन वी डोंट हैव एनी प्रूवन थेरेपीज फॉर रीजनरेटिंग फ्रॉम एक्सटर्नली। सो इन डिटेल वी कैन टॉक अबाउट दिस टुमारो। कहाँ से Ashutosh, सर? next you can. कहाँ से सर? योर एड्रेस, आपका एड्रेस? सर, आई एम फ्रॉम, आई करंटली बिलोंग टू मैसूर ऑफ कर्नाटका। ओके सर। हॉस्पिटल नेम सर? एन सर? वाट इज हॉस्पिटल का नाम? Sir, hospital. Sir, I हाँ can send you through the mail. It is SBS Ayurveda Medical College and Hospital. So it is a medical college basically, and I will make it clear. I don't treat any eye diseases here. मतलब जो भी पेशेंट आंखों की है वो हम देखते नहीं है, हम बस अवेयरनेस स्प्रेड करते हैं। ओके सर, ओके, थैंक यू। आई हेलो विल सर। कम sometime. हेलो सर, अशोक here. Yeah, Yeah, definitely Ashutosh, you can next come you and meet can me. ask your question. Hello, Shweta, Ashok. Shweta, please mute every others. Sir, no. Only Ashutosh. Yeah, Let Ashutosh I'm speak. doing that. Ashok. I think Ma'am, Ashok I want have to No, two ask a I questions. said question, Shweta. Okay, let actually people who have पहले raised आशुतोष को hand, I पूछने दो, was, then हाँ yeah. Sir, I have two questions. First, can retina, rods, and cone cells transpel ट्रांसप्लांट नहीं कर सकते, नहीं नहीं कर कर सकते? सकते। Second one is नहीं, why अभी भी। Mhm. हाँ You were सर, saying something, sorry. am I audible clearly? Your voice is breaking, Hitesh. Can you please try to be in a network zone? Yeah, I am in a network zone. I don't know why it's happening. It's the first time that I'm hearing that I'm able properly. Okay, it's मैं still breaking. I think he's reached on.
Okay. Am I good to go now? Yes, sir. Yeah, sure. Yeah. Yeah, what was the doubt? Can retina, Hmm. rods and cones cell transparent? अरे यार, Transplant नहीं हो सकता है. I said it. The only part which can be transplanted in a human eye is the most anterior part, that is cornea. मैंने सबसे पहले बताया था ना, एक टेम्पररी ब्लाइंडनेस भी होते हैं लोगों के अंदर, वो कॉर्नियल ओपेसिटी के जरिए होता है, तब उनको कॉर्निया का ट्रांसप्लांट करके ठीक करा जा सकता है. okay. Second question and last one, why pigmentation start on retina? सर, पिगमेंटेशन स्टार्ट्स बिकॉज ऑफ द, जब रॉड्स एंड कोन सेल्स का फंक्शन यही है कि लाइट को रिसीव करना और ब्रेन तक पहुंचाना, जब रॉड सेल है उधर लेकिन वो मर चुका है, कुछ काम नहीं कर रहा है, वो हमको पिगमेंट जैसे दिखता है. देखिए, ये आपको आसानी से मैं समझाऊं तो, आपका स्किन है, जब भी आपका स्किन जल जाता है तो उधर काला दरारें पड़ जाते हैं, मतलब इट लुक्स पिगमेंटेड देयर ड्यू टू डेथ सेल्स. Thank you, sir. यस. और कभी कभी Sure, sir, we फ्लॉटर्स can भी take. दिखते हैं. या जस्ट द क्वेश्चन इज आस्क्ड, आई कैन एक्सप्लेन यू. कभी कभी ये जो डेड रॉड्स एंड कोन सेल्स होते हैं रेटिना में, वो कभी कभी क्या होता है, डिटैच होते हैं रेटिना से. डिटैच होकर जो फ्लूइड बोला था मैंने, विट्रियस ह्यूमर करके, वो फ्लूइड के अंदर घूमने लगते हैं. जैसे मान लो पानी के अंदर धूल छिड़क गए, तो वो जैसे धूल पानी के अंदर घूमता है, तो ऐसा रॉड्स एंड कोन सेल्स मरने के बाद जो सामने विट्रियस ह्यूमर करके फ्लूइड है उसमें घूमने लगते हैं. यही वजह है कि आरपी पेशेंट्स को आंखों के सामने फ्लैशेस या फ्लोटर्स दिखते हैं. मक्खियां ऐसा कुछ बोलते हैं ना हिंदी में, तो वो मक्खियां दिखने की वजह यही है कि जो पिगमेंटेड सेल्स थे वो डेड होने के बाद डिटैच हो गए रेटिना से. Sir, The next, Ashok, yeah, Ashok, you can ask. Okay. yeah, actually, we 5 people, I mean, for our, we are siblings. Yeah. As you mentioned, my parents are married with the family. Okay, and consanguinic marriage बोलते हैं उसको. Yes. Yes. they are Yes. having A blood group. Both Okay. are having A plus positive. Okay. Okay. So when we are met Modi from in Manipal, Okay. that time in 2090s, Okay. then he told because of A vitamin, it will, if you take high dosage, it will be corrected. Okay. But my parents are not able to do that. But Okay. the thing is, what you told, like we are having RP only, Okay. but 5 people, 2 having normal sight, and we 3 got to the same problem. But the thing is, as you mentioned, it is genetic, right? Yes. 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 So because of the same parents' marriage with the same Yes. blood group or relationship. Yeah. Okay, sir. Yes. So I think, what do you want to know? You want me to explain what had happened to you What all you five? mentioned Yeah. about the causes of That's the, it. Yes. Yes. जब भी पेरेंट्स कॉन्सेंजिनस कपल्स होते हैं, तो चांसेस आपका 75 to 80% बढ़ जाता है कि आपको कोई ना कोई बीमारी आए. And most of the people will suffer retinitis pigmentosa, and there are other large group of diseases which are caused due to this close blood relation marriages. It's also called as consanguineous marriages. ऑटिज्म होते हैं बच्चों में, या ऊशर सिंड्रोम एक है. ऊशर सिंड्रोम में रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा के साथ साथ कान भी सुनाई नहीं देते. तो ऐसा भी बहुत केसेस है जो कॉन्सेंजिनस कपल की जरिए होते हैं. अगेन, ऑल द कॉजेस फॉर ऑल दिस इज जेनेटिक म्यूटेशन. So next, can I invite other person? Yes. Sushma, I think want to speak. Hello. Yes. Yeah. Sir, namaste. Namaste. So I'm from Bangalore, sir. Yes, ma'am. Sir, actually, what as you told now, no, for that, sir, my parents also married in relation. Okay.
So my actually read and write everything in as a normal person. Mm-hmm. So that's why my vision become blur so I am now 31st age. I am now. Okay. Okay. So Okay. I am getting blur vision, sir. Is there any improvement? Is there any treatment to improve the vision or to manage the eyesight what I have now? Okay. Okay. So, are you diagnosed with retinitis pigmentosa? Yeah, ನಿಮ್ಗೆ yes, sir. RP ಅಂತ ಡಯಾಗ್ನೋಸ್ ಮಾಡಿದಾರಾ? Yes, sir. By birth, it's hereditary problem. My father also have a same problem. Okay, fine. Uh, So, yeah. about stopping the progression of deterioration or getting back the vision treatment aspects, it's better we will Yeah. discuss it in the tomorrow session. Okay, sir. You Thank won't you. be able to understand it if I don't explain the possible treatments. जब तक मैं Okay. ये नहीं बोलूंगा कि क्या क्या हो सकता है, कितने तरीके का Okay. ट्रीटमेंट्स है, ऑटोसोमल रिसेसिव क्या होता है, ऑटोसोमल डोमिनेंट क्या होता है, एक्स लिंक्ड क्या होता है, ये सारी चीजें एक्सप्लेन बिना किए डायरेक्टली ट्रीटमेंट के बारे में कमेंट करने से आप लोगों को कुछ भी समझ में नहीं आएगा. दैट इज द रीजन Okay. व्हाई I have kept it in two sessions. In the first day, I am just trying to explain the normal functioning of human eye, the anatomy, physiology, and the diseases, how diseases are caused. सिर्फ बीमारियों को समझाने की मकसद है आज की. Okay, sir. Thank you. Yes, ma'am. Yeah, so next is SK Kushwaha. गुड इवनिंग। Good evening, हाँ sir. डॉक्टर सर, बहुत चीज अच्छा बोलने के लिए आपके लिए, लेकिन मैं सीधे क्वेश्चन पे आता हूँ। सर एक चीज है, मैं 48 का एज हो गया है मेरा, और मैं Okay. 42 4-5 साल से ये फील करता हूँ कि कभी कभी, मतलब रेगुलर नहीं, आंख में बहुत Okay. तेज जलन होता है, और Okay. उसके बाद से विजन ब्लरी हो जाता है पूरा, उस Okay. पूरे दिन रहता है। और Okay. सुबह में सब सो के उठता हूँ सुबह में, तो फिर ठीक लगता है, उस टाइम ठीक लगता है, और किसी किसी दिन पूरे दिन ठीक रहता है, मतलब बेहतर रहता है Okay. आरपी का Okay. पेशेंट को। Okay. और फिर नेक्स्ट डे ऐसा ही होता है, तो ऑलमोस्ट अल्टरनेट डे पे ऐसा होता है। मैं बहुत सारे डॉक्टर से हॉस्पिटल में मिल चुका, कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है। क्या आप कुछ बता सकते हैं कि ऐसा क्यों होता है, जलन क्यों होती है, इसका सर, कोई और ट्रीटमेंट भी है हाँ क्या, अदर देन आरपी की वजह से भी हो रहा है क्या ये सब? सर, जलन आरपी की वजह से ही हो सकता है. इसको बोलते हैं न्यूरोपैथी. न्यूरोपैथी का मतलब है, आपने ये भी शायद सुने होंगे कि डायबिटिक रेटिनोपैथी होता है. क्या आपको डायबिटीज है? जस्ट प्री डायबिटिक है, प्री थोड़ा डायबिटिक है. हल्का सा। तो जी आपको जब से रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा डायबिटीज के साथ मिलने लगा है, शायद ये जी। वजह हो सकता है. योर डायबिटीज मे नॉट बी इन कंट्रोल. बॉडी के अंदर जहां पर भी जलन होता है, इट इज मोस्ट ऑफ द टाइम एसोसिएटेड विथ डायबिटीज. और एक बीमारी भी है रेटिनाइट, डायबिटिक रेटिनोपैथी. तो वहां पे सबसे प्रिडोमिनेंट सिम्टम यही होता है. उनको दिखना बंद होता है, कभी कभी आंखों के अंदर जलन होता है, और कभी कभी वो अपने आप ठीक ही हो जाता है. सो दिस इज ड्यू टू द exaggeration of the optic nerves. जो आई बॉल के अंदर जो नर्व्स है, ड्यू टू एक्सेस ऑफ ब्लड ग्लूकोज विच इज बीइंग रीच्ड देयर, तो वो थोड़ा जलन जैसा महसूस करा देते हैं. सो आई थिंक फोकस ऑन योर डायबिटीज आल्सो अलोंग विथ रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा. अच्छा, शुगर पे फोकस करें या उसको करना पहले है, ट्रीटमेंट हाँ, मेडिसिन स्टार्ट कर दें? स्टार्ट करना ही ठीक है. आप एक बार HbA1c करके एक टेस्ट है, उसको टेस्ट करवाइए. वो यू सब कैन. कुछ वही 5 के आसपास रहता है, प्री डायबिटिक ही बताते हैं उसमें तो भी। ठीक है, तो 5। उसमें ज्यादा तो फिर सोच, देयर इज नथिंग टू बी मच वरीड फ्रॉम देयर. इफ इट गोस बियॉन्ड 6 or 7, देन यू हैव टू वरी. तो उसके लिए आपको कोई ड्रॉप्स वगैरह दिया था यूज करने कोई के लिए? अभी अभी बोले जो नॉर्मल मेडिसिन डॉक्टर्स होते हैं वो बोलते हैं कि अभी कोई दवा तो शुरू नहीं करना है, और उसकी वजह से हम समझ भी नहीं पाते, बट ये जो जलन है वही पैथेटिक कर देता है, तो मतलब जलन जो। इज बिकॉज ऑफ ऑप्टिक नर्व्स. वही है, हाँ मे बी। जहां पर भी हाँ जलन होगा वो नर्व्स के ही होगा. उसको न्यूरोपैथी बोलते हैं. तो जी। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स लेने से कभी कभी जलन कम हो जाता है. हालांकि आई शुड नॉट बी प्रिस्क्राइबिंग यू ऑन दिस कॉल. ऐसा प्रिस्क्राइब करना हालांकि ठीक नहीं है, लेकिन इफ यू गो टू एनी नियर बाई फिजिशियन, डेफिनेटली दे वुड बी प्रिस्क्राइबिंग यू विटामिन B12 हैविंग और बी कॉम्प्लेक्स इंजेक्शन एंड ऑल. रिसेंटली 2 मंथ से विटामिन B12 किसी और वजह से मैं ले रहा था, मतलब शॉर्टेज हाँ था इसलिए ले रहा था। हाँ बट हाँ हाँ. ये सर ये चीज जैसे आज ठीक है, कल खराब था, पूरा खराब था, उस तरह का ओके. चीजों का एंड मतलब होता है, कोई द ट्रीटमेंट सेकेंड है? थिंग इज स्ट्रेस मैटर्स अ लॉट. जैसे कि मैंने बोला, जैसे आंखों से ब्रेन तक की खराबी जा सकता है, ऐसे ब्रेन से भी कुछ नेगेटिव इंपल्सेस कैन रीच टू योर आईज.
सो यू कैन अंडरस्टैंड दिस इन द अदर मैनर ऑल्सो। कभी कभी ब्रेन में ज्यादा स्ट्रेस हो गया, कभी कभी वर्कलोड बढ़ गया, कभी कभी कुछ आपने इतना डिप्रेशन ग्रीफ में चले गए कि ब्रेन ठीक से आई से रेस्पॉन्ड नहीं कर रहा है, तो ऐसी कंडीशंस में भी आपको रेकरिंग ब्लरनेस आ सकता है। इसको रेकरिंग ब्लरनेस बोलते हैं। कभी कभी ब्लर आता है, कभी कभी ठीक होता है। वो मोस्ट ऑफ द टाइम द सेकेंड कॉज माइट बी दिस ब्रेन मूड्स। कभी कभी आप खुश होंगे, कभी कभी आप दुख में होंगे, कोई तो चीज दिमाग में आपका है जो चिंता बन के आपकी आंखों तक पहुंचा रहा है। सो दैट कैन बी द सेकंड रीजन आई कैन फाइंड आउट फ्रॉम योर केस। Okay, that could be. Yes. Okay, sir. Thank you. Yes. Okay, thank you. Okay, sir. So Tanya is also there. Good evening, sir. Yes, good evening. Yeah, so actually, this is something which I'm asking for my father and not for myself. Okay. And I think it was around some 25 years back or something, he had this problem of retinal degeneration. So Okay. after that, in that particular eye, he had only central vision. Okay. And it was okay until a few years ago, but Mm-hmm. in the last 2 to 3 years, his vision has deteriorated so much, and now he has very, very, very little vision. So Okay. it has been diagnosed as he's in like over 70. Okay. So Okay. it has been diagnosed as age-related macular Yeah, degeneration. AMD, yes. Yeah, That's so yeah. we consulted a few doctors, and these ophthalmologists said that right now there is no treatment Yeah, available yes, for yes. this particular Mm, condition. mm, mm, So mm. I just want to check with you, in Ayurveda, is there any kind of treatment or anything to kind of avoid, I mean, Yes, ma'am. retain that Yeah, I got your point. the And limited vision that as we have already decided, this session would only be focusing on explaining the diseases. So regarding treatments and all, we are going to discuss it tomorrow. So it would definitely be fine if this question is taken up in the next session. Okay, Yes, fine. ma'am. Yeah, Yes, ma'am. thank you. Yes. I would request everyone to ask questions related to the explanation of the diseases, as we are also running short of time. So just be stick to the explanation part, and for the treatment, we can have that tomorrow. मैं मेरा छोटा सा क्वेश्चन है, ये रेज हैंड नहीं कर पा रहा हूँ, मेरे को ऑप्शन नहीं हाँ मिल जी रहा। आकाश, पूछिए पूछिए। मेरा प्रॉब्लम अजीब सा है, जैसे ये आई थिंक पर्दा बोलते हैं, रेटिना कोई बोलते हैं, तो वो बोलते हाँ। हैं कि छोटा हो गया आपका, हम्म। पूरा बिल्कुल छोटा हो गया। तो पहले हम्म। ही मेरा ये प्रॉब्लम था, स्टार्टिंग से ही ये मेरा छोटा था, मतलब सुकड़ा हुआ था उन्होंने बताया। तो उसके बाद अभी मैंने लास्ट 2-3 साल पहले एक बार और इस अल्ट्रासाउंड कराया, तब उसने बताया कि पूरा सुकड़ गया है, इसलिए आपका पूरा विजन चला गया। लेकिन मेन प्रॉब्लम ये तो है कि चलो विजन चला गया, लेकिन क्या है, एक आईज में विजन अजीब सा है, मतलब कभी कभी ऐसा लगता है कि रोशनी चमक रही है, कुछ अजीब अजीब सा दिख रहा है। और या जैसे सर ने बताया, एक जलन का प्रॉब्लम मेरे को ज्यादातर होता है, जुकाम वगैरह हो जाता है, छींके वगैरह, तब जलन का प्रॉब्लम आईज में बहुत ज्यादा हो जाता है। तो इसके लिए कुछ आप बताओगे? या सी आई कैन रिलेट टू योर कंडीशन इनटू रेटिनल डिटैचमेंट। ये भी एक है, जब पर्दा छोटा हो गया, इसका मतलब है, आई सेड अबाउट रेटिना, जैसे मैंने बोला था आपको कि हमारा आंख एक स्पेरिकल शेप में है, तो उसका एक थिकनेस भी होता है। तो यूजुअली रेटिना इज कंसिडर्ड टू बी ऑफ 10 लेयर्स। रेटिना के अंदर 10 लेयर होते हैं, एक के पीछे एक के पीछे एक, ऐसा। तो रेटिना आपका डीजनरेट होते होते पूरा थोड़ा सा टुकड़ा ही बचा हुआ है। तो यहाँ पे सेल डेथ से भी ज्यादा सेल डिटैच हो रहा है। रेटिना जो पर्दा है, 10 एक के पीछे एक के पर्दा, उनमें पर्दे टूट टूट कर जो उसके सामने फ्लूइड है वहां पर गिर रहे हैं। तो इसको अगर शुरुआती दिनों में ही डायग्नोस कर दिया, तो लेजर ट्रीटमेंट या लेजर ट्रीटमेंट के जरिए उसको रिकंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। आपको कब पता चला इसको कि ये सब होने लगा है? फ्रॉम व्हेन यू आर हैविंग दिस? या ओके, जस्ट आई हेलो, कंटिन्यू। मेरी आवाज आ रही है? यस यस हाँ यस आकाश यस। बोलिए। मैं म्यूटेड हो गया था, पता नहीं कैसे। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। हाँ
मैं ये बोल रहा था कि मेरा स्टार्टिंग से ही इलाज चला है पीजीआई चंडीगढ़ में इसके लिए। यस यस लेकिन डॉक्टरों ने करीब 6 साल तक इलाज होने के बाद ये बताया कि आपका पर्दा जो है वो हाँ सिकुड़ा हुआ है। यस सो और बहुत उस कोशिश। टाइम पे आई थिंक ये इलाज भी नहीं था, हम्म इसका उन्होंने ऐसा कुछ किया नहीं। चश्मा तो लगाया वही है। और मेरा ग्लूकोमा का भी ऑपरेशन हुआ है, वैसे काला मोतिया और हम्म सफेद हम्म मोतिया का भी ऑपरेशन किया है। हम्म और लेंस डाले हैं आंखों में, कहीं Yes. दोनों में। So it is a very complicated case. There are multiple, conditions involved together. ग्लोकोमा भी है, रेटिना डिटैच भी हुआ है। तो एक के कॉम्प्लिकेशन की दूसरा बीमारी आपको आया है। व्हाट यू आर सफरिंग हाँ नाउ इज ए कॉम्प्लिकेशन ऑफ योर इनिशियल ग्लोकोमा। वो जो प्रेशर बड़ा बड़ा कर जो रेटिना था उसको मतलब फाड़ कर, आई कैन यूज दिस वर्ड इफ आई एम नॉट रॉन्ग, इट हैव टीयर torn the retina away and the pieces of retina are falling into the vitreous fluid, जिसकी जरिए आपको आंखों के अंदर अजीब गरीब वो चीजें दिखने लगे हैं, जैसे लाइट, फ्लैशिंग लाइट्स एंड अदर थिंग्स एंड ऑल। जैसे हाँ, रात को आसमान में पूरा सितारे अंधेरा भी चमकते होगा हैं। ना, तब भी हाँ ऐसा लगेगा कि रोशनी चमक रही है। बहुत मेरे देखिए, को जब तक प्रॉब्लम वो लगता है सेटल इससे डाउन नहीं सोने में होता भी। है, यस, जो चीजें सेटल डाउन नहीं होता है, एंड दे आर आल्सो सेंडिंग सम सॉर्ट ऑफ वियर्ड इम्पल्सेस टू द ब्रेन, तो ब्रेन परसीव भी गलत चीजों को कर रहा होता है। सो ये सारे चीज मिलाकर आपको ऐसा सिम्टम्स दिखा रहे हैं। हाँ जी। और मेरा यस एक ऑपरेशन बाद में भी हुआ है, पहले ऑपरेशन बचपन में तो बहुत सारे हुए हैं। एक मेरा यस ग्लूकोमा का तो प्रेशर बढ़ ऐसी गया था उस केसेस टाइम, थोड़ा में, पेरेंट। यस ऐसी फिर केसेस में जब जब भी प्रेशर बढ़ता है आंखों के अंदर, तो हमको एक अलग से ड्रेनेज क्रिएट करना पड़ता है। जो फ्लूइड जम हाँ गया है ना अंदर, अगर हाँ जी। वैसे फ्लूइड को छोड़ दिया तो वो डिस्ट्रॉय कर देगा रेटिना को। इसलिए बाद बीच बीच में क्या करते हैं, वी विल क्रिएट सम पैसेज अरे चैनल टू ड्रेनिंग ऑफ द एक्सेस ऑफ एक्वस एंड विट्रियस फ्लूइड विच आर प्रोड्यूस्ड इन द आई। आई बॉल के अंदर जो एक्स्ट्रा फ्लूइड होते हैं ग्लाउकोमा के बीमारी में, उसको बाहर निकालने के लिए कभी कभी ऑपरेशन करना पड़ता है। हाँ, वो 40 तक आ गया था एक बार प्रेशर, यस तब हुआ था हाँ दोबारा वही है, से। इसको 20 में ही रोकना चाहिए। इफ इट गोस बियॉन्ड 21 22, देन इट डेफिनेटली डैमेजेस आवर रेटिना। Yes. यस हेलो सर। यस मैम। सर मुझे आंखों के सामने ब्लड सा दिखता है, और जबकि मैं टोटली ब्लाइंड हूँ, कुछ भी नहीं दिखता मुझे। ये प्रॉब्लम मुझे करीब 6-7 महीने से है। ये क्या हो सकता है? मैं बिल्कुल शॉक हो जाती हूँ विद इन सेकेंड्स। या वो ब्लड नहीं है, वही फ्लॉटर्स है। आपको ब्लड भी नहीं पता है ना, हाउ कैन यू परसीव इट एज ब्लड? नहीं, मुझे लो विजन थी, मुझे कलर वलर सब फोन पता है। देखे हैं आपने, तो वही है जो फ्लूइड जैसे आंखों के अंदर घूमते हैं। आपने शायद पहले के दिनों में जो छोटा सा मोबाइल हुआ करता था लोगों के पास, वहां पे स्क्रीन सेवर करके थीम्स होते थे, तो ऐसा ऐसा चमकती हुई चीजें उस स्क्रीन सेवर में दिखते थे। सो दैट इज द सेम काइंड ऑफ परसेप्शंस और विजुअलाइजेशन दैट हैपेंस टू द पेशेंट्स हु हैव दिस रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा। वहां पे एक स्टेज है, फ्लैशेस, फ्लोटर्स बोलते हैं उसको। तो वो रेटिना सेल्स डेथ होके आंखों के सामने गिर रहे हैं। दैट इज द रीजन व्हाई यू आर परस्यूइंग सच काइंड ऑफ फीलिंग दैट यू आर सीइंग ब्लड। वो ब्लड नहीं है, वो सेल, डेड सेल्स है। डेड सेल्स पाउडर बन के आंखों के अंदर ही गिर रहे हैं। So ओके whenever सर, they बाकी settle down, क्वेश्चन वो कल पूछूंगी, कल yes, ma'am. ट्रीटमेंट करूंगी। Definitely, ma'am. हेलो सर। Yes, ma'am. सर मुझे रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा है, और मेरे Okay, ब्रदर को भी है, दोनों को okay, भी है। और मेरा ब्रदर छोटा है मुझसे। okay. तो अभी उसके दोनों आंखों में ना कैटरेक्ट डेवलप हो रहा है। Yeah, posterior subcapsular cataract बोलते हैं उसको, yes. तो अभी उसका सिर्फ सेंट्रल विजन है, जो ट्यूबुलर बोलते हैं ना, Hmm, का। hmm, और hmm. मेरा सेंट्रल अफेक्टेड है, मेरा पेरिफेरल विजन है। Okay. अभी उसका जो कैटरेक्ट दोनों में डेवलप हो रहा है, तो ही इज थिंकिंग कि ऑपरेट किया जाए कि नहीं किया जाए। ऑपरेट करना भी बहुत मुश्किल है उसको, एंड इट डिपेंड्स ऑन द ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट हु विल बी विलिंग टू टेक रिस्क। देखिए, आपका रेटिना कितना बचा है उसके हाँ। हिसाब से ऑपरेशन करना है या नहीं करना है डिसाइड करेंगे। अगर मान लीजिए आपका रेटिना ही नहीं बचा है, पूरा रेटिना जल चुका है, डिजेनरेट हो चुका है, तो हम्म। ये मैंने बोला था आपको कि कैटरैक्ट लेंस में होता है, तो हम्म। लेंस से कैटरैक्ट रिमूव करके भी कुछ फायदा नहीं होता है। अच्छा। यूजुअली इन रेटिना द हम्म। कैटरैक्ट विच हैपेंस इज पोस्टीरियर कैटरैक्ट, एंटीरियर वाला कैटरैक्ट नहीं है। जो अच्छा। अक्सर लोगों में होता है वो एंटीरियर हम्म। कैटरैक्ट है, हम्म। एंटीरियर सेगमेंट में आता है। लेकिन हम्म। जो आरपी का एक कॉम्प्लिकेशन है, हम्म। पीएससी बोलते हैं उसको,
आपके रिपोर्ट में शायद लिखा होगा, पीएससी का मतलब है पोस्टीरियर सबकैप्सुलर कैटरैक्ट। ये हम्म कैटरैक्ट रेटिना की तरफ से हो रहा है, पीछे की तरफ से। पहली चीज है, वहां तक ऑपरेट करके पहुंचना ही मुश्किल है। मान लीजिए हम बहुत मुश्किल से वहां तक पहुंच भी दिया ऑपरेट करके, तो कैटरैक्ट रिमूव करने के बाद जितना पॉसिबिलिटीज है कि आपको फिर से रोशनी आएगा, वो भी कम रहता है chances. So that is the reason why in most of the cases, even I am suffering with posterior subcapsular cataract since past 4-5 years, and I personally didn't go for that operation and all. जो कॉस्ट बेनिफिट रेशियो बोलते हैं ना, आपने 1000 रुपए डाल दिया, सिर्फ आपको रिटर्न 1 रुपए 2 रुपए मिल रहा है, तो व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ गोइंग देयर? right. या दैट्स द थिंग। Thank you, sir. वेलकम। हेलो सर। यस सर, जैसे एक मैडम ने बोला कि उनको रेड कलर का ऐसे फ्लूइड घूमता हुआ दिखता है, सेम मुझे व्हाइट कलर दिखता है सर। इवन आई एम आरपी पेशेंट। यस यस यस, एक्चुअली उसमें कलर्स होते नहीं हैं। दिस इज सिंपली इन एन इल्यूजनरी परसेप्शन दैट वी हैव एक्चुअली। मैंने बोला ना, जो रॉड सेल्स, कोन सेल्स, मुझे भी कभी कभी ब्लू, येलो सभी कलर्स के दिखते हैं। सो दैट हैपेंस ड्यू टू दिस यू नो dead cells which will be floating in front of our eyes, in front of our retina to be particular. रॉड सेल, कोन सेल्स जो डेथ होते हैं, वो कभी कभी गिर जाते हैं रेटिना से अलग होकर। वो छोटे छोटे चीजें पानी में धूल जैसे दिखने लगते हैं। वो ब्रेन तक जब पहुंचेगा तो कलर परसेप्शन हो जाएगा। Hi sir, this is Pawan Sharma. यस सर, गुड इवनिंग। I am from Madhya Pradesh. So ओके I am RP patient. ओके I have simple one question. ओके। Sir, why do eyes size happen small consecutive? व्हाई डू आइज Size happen small consecutive. क्या हिंदी में पूछिए, आंखें क्यों छोटे होते हैं? इज इट मतलब वांट लगातार आंखों का जो साइज है वो छोटा क्यों होता रहता है? सी इट इज कंट्रोल्ड बाय द ब्रेन। ओके, जब भी आंखों के सामने ऐसे चीजें आ जाएगा, बहुत ब्राइट वगैरह या बहुत कॉन्ट्रास्ट कलर की चीजें जब आंखों के सामने आते हैं, तो ब्रेन उसको परसीव नहीं कर पाता है, तब आंखों को ओके खुद वो छोटा बनाता है। जब अंधेरा ओके होगा, इसको बोलते हैं कॉन्ट्रैक्शन एंड डायलेटेशन। आंखें ओके कॉन्ट्रैक्ट तब होते हैं जब आपको भारी तरीके से बाहर से धूल आ रहा हो, रोशनी आ रहा हो, ब्राइट लाइट टार्च, कोई अगर आपके आंखों को टार्च डाल दिया, तब आपके आंखें छोटे बन जाते हैं, ताकि इट टू प्रिवेंट दैट ब्राइट लाइट एंटरिंग इनटू योर आईज। लेकिन कभी कभी ओके पूरे जब अंधेरे में आप जाते हो, तब लाइट मिल ही नहीं रहता है, तब ऑटोमेटिकली आंखें बड़े बनते हैं। जो सर्कल होता है ना, रेड अंदर वाला, ब्लैक वाला, वो कभी कभी बड़ा बन जाता है ताकि अंदर ज्यादा रोशनी पहुंचे। वो छोटा तब एक्चुअली बनता है। हाँ। एक्चुअली सर मैंने देखा है कि जो आरपी पेशेंट्स में हम्म, उनकी जो आंखों का साइज अगर आप बाहर से भी देखते हैं ना, छोटा तो बनता है। धीरे धीरे ऐसे ही आंखें अंदर कॉन्ट्रैक्ट होता धसती है। जाती हैं। हम्म। लाइक आंखें अंदर धसती जाती हैं, ऐसा ये लगता है। सिर्फ आरपी के नहीं है, ये कॉम्प्लिकेशन ओके ऑफ आरपी है। ऑप्टिक मजल्स जो अंदर मैंने बोला था, कुछ अंदर राइट राइट मजल्स रहते हैं, तो ये ओके मजल्स आंखों को कंट्रोल करते हैं। देयर आर 6 स्पेशलाइज्ड मजल्स, और राइट उसको बोलते हैं अंडरस्टूड अक्यूलोमोटर मजल्स। ओके, ओके आंखों को ओके हिलाने के लिए पीछे, ऊपर, नीचे, दाएं बाएं, हर जगह ओके घुमाने के लिए अलग अलग मजल्स की जरूरत पड़ता है। जब आरपी राइट की पेशेंट्स में शुरुआती दिनों में ठीक से नहीं दिखता है, तो ब्रेन जी को पता नहीं रहता है कि रेटिना डिजेनरेट होने लगा है। ब्रेन विल थिंक ओके एज इफ द मजल्स आर नॉट वर्किंग प्रॉपरली, सो इट पुट्स एक्सेस ऑफ ओके प्रेशर्स ऑन द मजल्स टू फोकस। जब भी आप कैमरा में जूम करते हैं ना, जूम इन जूम आउट, किसी चीज को फोकस करने के लिए, तो ब्रेन भी राइट ऐसा कमांड दे देता है हमारा, यस गुड इवनिंग, ऑप्टिक मजल्स को, कि वो ठीक से फोकस करने के लिए। तब धीरे धीरे ओके मजल्स क्या बनता है, वीक बनते जाता है। तो ओके आंखों की ठीक प्लेसमेंट नहीं होता है। जो ऑर्बिट ओके बोलते हैं उस कैविटी को, स्कल होता है ओके ना, स्कल के अंदर ओके एक छोटा सा कैविटी रहता है, उसी के अंदर आई बॉल्स को रहना होता है। तो वो ओके कैविटीज में मजल्स रहते हैं, जो आई ओके आई आई की प्लेसमेंट को एडजस्ट करते हैं। जब ये मजल्स ओके वीक बन जाते हैं, तो धीरे धीरे वो आई बॉल्स को अंदर खींचने लगते हैं। सो दैट इज हाउ आई बॉल्स विल ग्रेजुअली गेट इनसाइड। ये हर एक में नहीं होता है, इट हैपेंस वेरी रेयरली। In rarest of the cases, this kind of optic atrophy occurs. Yeah, thank you so much. Yeah, you're welcome. Okay. हेलो सर।
यस सर एज आई एम ऑल्सो आरपी पेशेंट सो माई डॉटर सर, उसका मैंने जीन एनालिसिस किया था व्हेन शी वाज ओके 1 year old, तो ओके वो भी पॉजिटिव आई है सर। ओहो या सर आप क्या गाइडेंस दोगे सर मेरे लिए? एट प्रेजेंट शी इज 3 years old, थोड़े ओके सिम्टम्स मुझे दिखाई दे रहे हैं उसमें, लेकिन ओके वो बहुत नजदीक जाके टीवी देखती है सर, और बहुत हम्म ऑफन गिर जाती है, पैर के ओके नीचे देखती नहीं है कि क्या है, नीचे नजर जाती नहीं है सर उसका। ओके तो मैंने उसको ट्रीटमेंट मतलब दिखाया था, हम्म उन्होंने बोला है या कि उसे स्पेक्स लगेगा। हम्म Yeah, I got your point. Actually, RP is preventable in certain cases only before delivery of the baby. बच्चे को अगर कंसेप्शन ही नहीं हुआ है, आप शादी से पहले ही काउंसलिंग कराते हैं, जेनेटिक काउंसलिंग, देन इट कैन बी प्रिवेंटेबल. इट इज कॉल्ड एज पीजीडी, प्री इम्प्लांटेशन जेनेटिक डायग्नोसिस. तो पीजीडी करा सकते हैं जो अभी तक शादी नहीं किए हैं, आरपी की पेशेंट्स है, गलती से आरपी की बंदे से ही प्यार हुआ है, तब यू कैन डू पीजीडी एंड गेट ए नॉर्मल बेबी. दिस इज फर्स्ट थिंग. एंड सेकेंडली, हाँ आई विल टेल यू, प्रेग्नेंट बन गई है तब अगर आप जेनेटिक काउंसलिंग कराते हैं, देन देर इज कॉल्ड एज पीएनटी, प्री नेटल टेस्ट. यहाँ पर एमनियोसिंथेसिस करके बच्चों की जीन्स को बाहर निकाल के, मतलब बच्चे का मतलब फीटस जो गोद के अंदर है वहां पे निकाल के, इफ इट इज जेनेटिकली पॉजिटिव देन दे विल अबॉर्ट इट. ये दो तरीके हैं प्रिवेंट करने की. लेकिन बच्चे ऑलरेडी जन्म ले चुका है, देन इट इज हार्ड टू बी प्रिवेंटेड इन एनी वे. अभी उनको प्रिवेंट करना थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन रिहैबिलिटेशन कैन बी द बेस्ट अप्रोच. और मैं कल आपको गाइड करूंगा. ऐसे बहुत सारे वेज है जहां से थोड़ा प्रोग्रेशन को धीमी कर सकते हैं. बस दैट्स ऑल व्हाट वी कैन डू. लेकिन आरपी पॉजिटिव है तो वो आकर ही रहेगा. सर मेरे हस्बैंड तो साइटेड थे, फिर मेरी बेबी को क्यों हाँ, हुआ सर? so I will explain it tomorrow. There is something called autosomal recessive inheritance. ये आपके केस में autosomal recessive inheritance बोलते हैं. So I want to explain it. Anyway, it is my topic for tomorrow. I will definitely be putting light on this. Okay sir. Yeah. I would request everyone to ask their questions in a faster manner as we are running short of time, and to be distinctive questions means to repeat हो गए हैं. I won't consider कि दोबारा हितेश जी would answer it. तो be shorter and be distinctive. Yes. Sir, how is the remove cataract problem, sir? No, I didn't get your answer. You are asking how to remove cataract problem. Sir. Well, we will talk it tomorrow. We will talk it tomorrow. It is a treatment aspect, no? Okay, Anyway, sir. we are running out of. We have already consumed 30 minutes more than our target. So Okay, sir. treatment things we will definitely be. We will कल फिर से 2.5 घंटे हम डिस्कस करेंगे. I mean 1 hour 30 minutes. सर ये एमनियोसिंथेसिस प्रेगनेंसी के कौन से महीने में करवाते हैं? पहले ही मंथ से कर सकते हो अगर प्रेगनेंसी कंफर्म है. यूजुअली इट इज डन इन द फर्स्ट ट्राइमेस्टर. दैट मींस पहले 3 महीने में करते हैं. ओके. हाँ, इट कैन बी डन. सर ये पीजीडी को आप थोड़ा एक्सप्लेन कर सकते हो क्या प्लीज? दैट्स माय टुमारोज टॉपिक. एनीवे, ओके. मैम पूछ ली थी इसलिए बोला था. एनीवे, आई विल एक्सप्लेन इट टुमारो. Yeah, if doubts are done, I think Tarushi ji, we can end Yeah, sure. session for today. So I'm just making the last call. अगर कोई भी जन है जिसे अपनी बीमारी के बारे में समझना है, not the treatment part, so this is the last call. आप एक बार पूछ सकते हैं. Okay, sir. Bye. I have done. Yeah, good. और जेनेटिक टेस्ट के लिए कोई कॉमन से हॉस्पिटल भी होती है क्या जहाँ पे कम पैसे में जेनेटिक टेस्ट हाँ हो सर, हर एक मल्टीपल हॉस्पिटल में आजकल ये है. जेनेटिक काउंसलिंग डिपार्टमेंट करके एक अलग से क्लिनिकल जेनेटिक्स बोलते हैं उसको. तो हर एक मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में आजकल ये जैसे उपलब्ध है. मेरा आई रेटिनाब्लास्टोमा है तो मेरा डॉक्टर ने बोला था जेनेटिक टेस्ट कराने के लिए, वहाँ पे 20-25 हजार रुपए लग रहे थे चंडीगढ़ में. वहाँ पे पीजीआई में नहीं है, प्राइवेट का दिया था कांटेक्ट, मैंने नहीं कराया. तो मैं गवर्नमेंट हॉस्पिटल ढूंढ रहा हूँ, बिहार में तो मेरा यहाँ नहीं है सर. नहीं, आपको तो जेनेटिक काउंसलिंग से भी ज्यादा फायदा नहीं हो सकता है.
नहीं, in my जेनेटिक्स opinion. टेस्ट कराने के बोले हैं, टेस्ट कराओ कि आपका शादी हो, आपको बच्चे को हाँ, हो रहा होगा या नहीं, ये टेस्ट शादी कराने के लिए। किया है आपने? नहीं, अभी नहीं हुआ, अभी मेरा नहीं हुआ है, सॉरी। इसलिए ठीक है, उन्होंने ठीक है, जांच का दिया है कि जल्दी ठीक है। तो शादी टेस्ट करने के लिए करवाना जेनेटिक टेस्ट एक छोटी सी चीज है, लेकिन इतना भी नहीं है कि आपको शादी करना है तो जेनेटिक टेस्ट करवाना ही है, ये भी नहीं है। यू कैन whenever you कराओ। plan ये your नहीं है। family, let me complete my words. Whenever you plan for a family, that time genetic test would be of essential. तो अभी ट्रीटमेंट के लिए कभी कभी कुछ लोगों को ट्रीटमेंट के लिए भी जेनेटिक टेस्ट की जरूरत पड़ता है, तो इट इज नॉट सो इन योर केस। आपको ट्रीटमेंट के लिए जेनेटिक टेस्ट नहीं मंगाया जा रहा है, आपको फैमिली के लिए नहीं, कर। ट्रीटमेंट के लिए, हाँ, तो आप, पर्सनल लाइफ के लिए। या दैट्स हाँ, इट। आपको मैं एक छोटा सा सुझाव दूंगा। हॉस्पिटल का नाम डोंट, बताइए कैसे। यस, सी, आपको दिमाग में सिर्फ दो चीज रखना है। एक है, डोंट गो फॉर ए ब्राइड हु इज फ्रॉम योर ब्लड रिलेटिव। ऐसा लड़की नहीं होना चाहिए जो आपके खून से रिश्तेदार है। तो दूसरी चीज, ऐसे भी लड़की को चूज मत कीजिए जो ऑलरेडी विजुअली डिसेबल्ड है। अगर ये दो चीज नहीं है तो आपको अभी के लिए जेनेटिक टेस्ट कराने की जरूरत नहीं है। फिर भी इफ यू आर डूइंग इट, इट्स गुड, नो नो रॉन्ग इन दैट। अच्छा, तो सर ऐसा भी नहीं है कि आप गवर्नमेंट हर हॉस्पिटल लड़की से जो आपके पास आती है उससे जेनेटिक टेस्ट करवा के दोनों का मैच करवा के बाद में शादी होता है, ऐसा तो नहीं होता है ना। सो ऐसा नहीं योर है। जेनेटिक टेस्ट इज एसेंशियल ओनली मेरा व्हेन अपना यू आर डॉक्टर प्लानिंग है। फॉर योर किड। यस। So yeah, Shweta, Tarushi, please wind up now. Like we are already Yeah, running late. sure, sir. Sure. One last question. Can I ask one last question, please? Yes, please go ahead, please go ahead. सर एक चीज बस हमको समझा दीजिए, ये क्या मेटाबॉलिज्म और ये जो गैस वगैरह बनता है, इससे भी आरपी का जो हाँ, सिम्टम है वो डेफिनेटली एक्सेलरेट सर, होता है, डेफिनेटली होता भी है, बढ़ता है? डेफिनेटली होता है। आई विल बी पुटिंग मोर लाइट ऑन दिस टुमारो। डेफिनेटली होता है। होलिस्टिक ओके हेल्थ बोलते हैं इसको। हर एक चीज, मैंने बोला ना भी, दिमाग के अंदर थोड़ा सा भी प्रेशर है वो भी आपके आंखों के अंदर रिफ्लेक्ट करता है। आपकी जिंदगी की छोटा सा खुशी भी आपके आंखों के ऊपर असर कर सकता है। या वी विल टॉक इट टुमारो। ओके सर, ओके, थैंक यू। या Okay, I hope Dr. Hitesh has Kotila. answered so many questions for today. And as we have discussed that we will be discussing treatments, possible ways to slow down the progression, and how we can deal topics like marriage or family planning. These are the things we are going to discuss tomorrow. And sir, do you want to add something? No, nothing from my side. Excited for Okay. tomorrow. Yeah. Okay, so I think we are good to wind up, and we will be hoping that we see you tomorrow session as well. Thank you everyone.